वो सब रिकॉर्ड होगा। This call is now being recorded. Now I am presenting my screen and I'm sharing it with you all so that whatever I am doing over here, it should be visible to you all. Now all of you can see my screen on your, wait a minute. Yeah. Now all of you can see my screen on your screen. Okay. आपको मेरी जो स्क्रीन है वो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी. Kindly confirm. One or two teachers should confirm it. Yes, sir. We are able to Okay, see your okay, okay. Thank you. Now do one thing. You just come on my name. Sanjay Kumar sir, you are requested to kindly enter through KBS domain. आप मेरे नाम के ऊपर जाइएगा. मैं अपने नाम के साथ नहीं, मैं किसी और के नाम के साथ करके दिखा सकता हूँ आपको. जो आपको करना है, आप मेरे नाम के ऊपर जाइएगा, उस पे क्लिक कीजिएगा. जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो फर्स्ट आइकन मिलेगा, दैट इज पिन टू स्क्रीन. यू नीड टू pin my screen to your screen. So pin it. Now what will be the use of this pinning in? अगर कोई बीच में भी इंटरप्ट करेगा या कोई कुछ बोलेगा तो वो मेरी स्क्रीन को मेरी ही स्क्रीन को फ्लैश रखेगा, दूसरे की स्क्रीन को वहां नहीं आने देगा. So I'm requesting you to kindly pin my screen as I am doing. आप मेरे नाम के ऊपर जाइए, एक क्लिक कीजिए. 3 आइकन मिलेंगे. जो सबसे फर्स्ट आइकन है, दैट इज पिन टू स्क्रीन. यू नीड टू क्लिक ऑन दैट. क्लिक इट so that I can proceed further. Okay. I hope all of you have pinned my screen. Thank you, Mr. As Mohammed Ji and Sangeeta Talwar madam. You are requested to kindly click off your cameras, switch off your cameras. Now how to switch off your cameras? If you are using Sunita madam, आप अपना कैमरा बंद कीजिए. मैं आपको बताता हूँ कैमरा कैसे ऑफ करना है. यहाँ पर आपको 4 आइकन दिख रहे हैं. आपकी स्क्रीन में सिर्फ 3 मिलेंगे. फर्स्ट वन इज माइक, सेकंड वन इज कॉल एंड थर्ड वन इज कैमरा. सो इफ यू वांट टू स्विच ऑफ योर माइक, आप यहाँ से स्विच ऑफ कर दीजिए. आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो आपका माइक स्विच ऑफ हो जाएगा. दैट इज टर्न ऑफ माइक्रोफोन बाई. और अगर आप लैपटॉप पे हैं तो आप कंट्रोल डी कीजिए, आपका माइक स्विच ऑफ हो जाएगा. एंड इफ यू आर यूजिंग and if you want to turn on and off your camera, then you need to press control E or click on it. तो आपका कैमरा ऑफ हो जाएगा. ठीक है. So requested to kindly switch off your cameras also. हो गया. So we should proceed further. देखिए आप ना जो मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका रिप्लाई मुझे टेक्स्ट में 1-2 बार भेज दे रहा कीजिए, ताकि मुझे ये कंफर्म हो जाए कि हाँ हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है. So now let us start with the presentation. It is not exactly the presentation that PPT वगैरह नहीं है. I'll go through the procedures and process through which we can move into the G Suite account. First of all, I'll let you know how to log in to the G Suite account. For that, what we need to do is we need to open a browser.
we need to go to the browser. Now type www.google.co.in. After logging, going to this, go to Gmail, click on the Gmail, use another account. Now enter the KVS domain mail. For example, आपका जो भी नाम है उसका फर्स्ट नेम डॉट आपका एम्प्लॉय कोड @ kvsrodelhi.in is your mail ID for that. Like I have made a dummy ID. kvsrodelhi.in. This time I have allowed many of you without the KVS domain ID to enter the meet. But in the next session or whenever the next meeting will be there, we will not allow you to enter this meeting like that. Now enter the password. By default, password is password. But if you have changed your password, then enter the changed password. After entering the password, you will enter your Gmail. This is something very normal process, but I had to start for the beginners also, so I have told आप सब लोगों को ये सब चीजें बताई हैं कि आपको मेल में एंटर करना है. Now this is a student account. ठीक है. Similarly, जब मैं अपना अकाउंट खोलूंगा, so it will be somewhat like this. Okay. It will be somewhat like this. Now what I need to do is I need to before proceeding we can see like जब हम नॉर्मल अकाउंट खोलते हैं यहाँ पे जी सूट कभी भी नहीं लिखा आता. यहाँ पे लिखा होता है या तो आपका नाम या फिर आपकी फोटो बनी हुई होती है. ठीक है. But it is called G Suite account because almost all the application are interrelated and interconnected in the G Suite account. That is why we used to call it G Suite account. First thing, आप एक अकाउंट पे काम करेंगे तो एक सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, वो दूसरे के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा. ठीक है. अगर दूसरे पे करेंगे तो तीसरे पे हो जाएगा. So similarly, also we used to call it like G Suite इसलिए भी है क्योंकि ये यहाँ पे kvsrodelhi.in, ये this is the main domain. This is a domain through which we are logging in, और हमारे जितने भी अकाउंट हैं वो directly or indirectly kvsrodelhi.in जो है वो मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है. That is why it is called G Suite account. आगे चलते हैं. Click on these 9 button and plus. So we will move on to these many softwares, and all these softwares are interconnected. But in today's session, we will be taking up Drive, Classroom, Meet, Calendar. So these many. बाकी हम Google Docs और Sheets के बारे में भी जानेंगे. ठीक है. बट मेनली हम आज की डेट में ड्राइव, क्लासरूम एंड गूगल मीट के बारे में और इसके अंदर जितने भी थिंग्स इंटरकनेक्टेड हैं उन सब के बारे में हम देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल what we need to do is we need to click on it and enter the Google Classroom. So this is the first interface of your Google Classroom. Over here you can see these 3 columns. On a precise way it will give you आपकी कितनी क्लासेस बनी हुई हैं, आपके कैलेंडर्स क्या हैं, and there are some settings. So I don't think there is much more to explain in this part. First we start with creating a class. Now you can see there is written create or join a class. So when you are working on a teacher account, then यहाँ पे create or join a class आएगा. But if you are on a student account,
यहाँ पे सिर्फ join a class आएगा. मैं I'll show you. This is a child account. I'm going to a Google Class now. When I take my cursor to the plus part, it is showing join a class. So this is a difference. This is a very, in fact, a great difference for a teacher account and a mentor account. Oh, sorry, student account. So now we are on teacher account. We'll click on this plus and we will create a class. Now, if a teacher joins a class, he or she will be joining a class as a student. ठीक है, माइंड इट, अगर वो क्लास कोड के साथ में ज्वाइन करता है तो ठीक है. बट if a teacher gets an invitation, ठीक है, that I will show you how can you send an invitation and how can we join a class by clicking or by accepting the invitation. But if you are joining a class by a class code, then a teacher will join a class as a student. Mind it. Okay, then now we will go to create a class. As I click on create a class, this is the first interface that will come. Now you need to write a class name, and there is a one set of standard protocol which is to be followed while writing the name of a class name. That is your school code. For example, your school code is 1430. So I'm not taking anything. I'm taking 1, 2, 3, 4. Shift underscore. If your school is running in single shift, then no need. If it's running in two shift, then shift 1 S1 for shift 1 and S2 for shift 2. Shift underscore your class and subject. For example, I'm taking 4A shift, then subject is English. शिफ्ट सब्जेक्ट, शिफ्ट अंडरस्कोर के बाद में आपका नाम. सो इनफैक्ट इस एक क्लास नेम के अंदर सब कुछ है. आपका स्कूल का कोड, शिफ्ट, क्लास, सब्जेक्ट एंड योर नेम. सो सेक्शन 4A subject English. There are some set of standard subjects which are there. You can choose your subject from there also, and if you want to write it with type it. If you want to type, then you can type. Room number is not a mandatory part, but still if you write 101, that would be the good thing. Click on the create button. It will take 1 second, 10 seconds, 5 seconds. It because उसको सारे links create करने होते हैं, तो wait for that. Now, as soon as the class is created, what we need to do is we need to go to the settings. सबसे पहले settings पे जाएंगे. Settings पे क्लिक कीजिएगा. जो इंटरफेस आएगा वो कुछ ऐसा होगा जो आपने ऑलरेडी यूज किया. क्लास नेम आपने बना दिया था, सेक्शन कर दिया था, स्कूल रूम नंबर डाल दिया, सब्जेक्ट डाल दिया, डिस्क्रिप्शन डालना है. ना देखिए डिस्क्रिप्शन जो है वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. अगर आपके पास में लाइक कुछ अच्छे बच्चे हैं, आपने अच्छे बच्चों के लिए, अच्छे बच्चे मींस लाइक ओवर टैलेंटेड बच्चे हैं, आप उनको एक्स्ट्रा काम देना चाहते हैं, तो उनके लिए आप एक अलग क्लास बना दीजिए. सो क्लास डिस्क्रिप्शन विल हेल्प यू इन दैट केस. ठीक है, अगर आपके क्लास के बच्चे जो हैं, मतलब आप स्लो लर्नर्स के लिए या अंडर अचीवर्स के लिए कुछ और अलग से ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो क्लास डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको वहां पे हेल्प करेगा. ठीक है. सो now the second part is the general settings that contain your class code, your stream, your classwork on the stream, show deleted item, guardian survey. Now क्लास कोड क्या है? देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था ज्वाइन क्लास का ऑप्शन आएगा. तो क्लास ज्वाइन कराने के लिए हमें इस क्लास कोड की जरूरत पड़ेगी. दिस क्लास कोड इज अ वेरी यूनिक कोड एंड इट इज नॉट क्रिएटेड और मैनुअली जनरेटेड. ठीक है, ये ऑटो जनरेटेड होता है. हाँ, आप इसे रीसेट करके दूसरा क्लास कोड जनरेट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दिस ड्रैग डाउन एरो.
आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन फिर दिखाएगा, डिसेबल, कॉपी, रीसेट एंड सॉरी डिस्प्ले एंड डिसेबल। ओके, नाउ डिस्प्ले में ये बड़ा बड़ा आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा सो दैट यू कैन इजीली रीड इट, ताकि गलती ना हो आपसे। Then copy, you want to copy and SMS it to, or you want to text it to someone, you can do it from here. Reset. Now what is the fun of resetting the password? Sometimes it happens, this is a technology world and errors means errors can take place in technology world. तो कभी कभी क्या होता है, ये क्लास कोड जो है वो बहुत सारे बच्चे इससे एक्सेस ही नहीं कर पा रहे होंगे। Now so what we can do is we can reset the class code. As I will click on the reset button, तो ये वाला नया क्लास कोड जनरेट हो गया ना। माइंड इट, पुराना वाला जो क्लास कोड था अब बच्चे उससे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, उनको ज्वाइन करने के लिए यही वाला क्लास कोड एंटर करना है। देन डिसेबल, इफ यू वांट दैट लाइक आपकी क्लास में 45 बच्चे हैं और 45 के 45 बच्चे आपकी क्लास ज्वाइन कर चुके हैं, नाउ डिसेबल इट। ठीक है, इफ यू विल डिसेबल इट देन नो वन कैन ज्वाइन अ क्लास यूजिंग द क्लास कोड, बिकॉज क्लास कोड है ही नहीं उस क्लास का। सो दिस इज अ यूज ऑफ क्लास कोड। आप अपनी अकॉर्डिंगली क्लास की स्ट्रेंथ को जनरेट कर सकते हैं, मींस क्लास के अंदर एंट्री अलाउ कर सकते हैं। नाउ आफ्टर डिसेबलिंग इफ यू इनेबल द क्लास कोड विल अगेन चेंज। ऐसा नहीं है कि वो पुराना वाला ही आएगा। ठीक है, अब नया क्लास कोड आया। सो अब इफ यू वांट टू इफ यू वांट योर चाइल्ड टू एंटर द क्लास then he should have this class code. Now streaming is just like your security settings in the WhatsApp or something, any another group, इसमें हम किसको अलाउ करते हैं काम टाइप करने के लिए, मैसेजेस भेजने के लिए, वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पे स्ट्रीम सेटिंग्स के अंदर में है। फॉर एग्जाम्पल आई विल क्लिक ऑन इट, नाउ इट इज ओपन फॉर ऑल, स्टूडेंट कैन पोस्ट एज वेल एज कमेंट, बट जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो कहेंगे स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट। ठीक है, वो कमेंट भी सिर्फ और सिर्फ अपने काम के ऊपर कर पाएंगे, अपने ग्रुप के अंदर कर पाएंगे। But if I'll go for only teachers can post or comment, it means only teachers can post and comment, means student cannot post and comment on the class group. ठीक है, इसका यूज तब होता है जब आप क्लास टेस्ट वगैरह ले रहे हो, क्लास के अंदर रैंडम क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हो। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन लिया और सारे बच्चों को भेज दिया, वो मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चंस कैसे भेजते हैं। बच्चे जब आंसर्स भेजेंगे तो कुछ बच्चे बहुत नटोरियस होते हैं, ठीक है, दे वांट टू शो दैट वी नो एवरीथिंग, तो वो क्या करेंगे, वो क्लास ग्रुप में आंसर्स पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सो टू प्रिवेंट देम यू शुड रिस्ट्रिक्ट देम टू राइट द आंसर्स ओवर हियर, एंड व्हाटएवर आंसर दे विल राइट इट विल बी डायरेक्टली सेंड टू योर गूगल ड्राइव और गूगल शीट के रिस्पॉन्सेज में उसका आंसर जमा होगा। So to restrict all that thing, we need to go for streaming. Now classwork on the stream, basically this is the notification section. आप हर जगह आप फोन में आप देखते हैं हर चीज की नोटिफिकेशन आता है। So what kind of notification you need, that is show attachment in detail, show condense notification and hide notification। यानी इस कंडीशन में तो आपके काम की नोटिफिकेशन आएगी नहीं, बच्चा सबमिट कर देगा तब भी आपको नहीं पता लगेगा, नहीं करेगा तब भी नहीं पता लगेगा, बट इन दोनों कंडीशंस में नोटिफिकेशन पता लगेगा। इसमें नोटिफिकेशन आएगी और इस कंडीशन में नोटिफिकेशन भी आएगी और काम भी दिखाएगा कि ये अटैचमेंट हो रही है आपकी मेल पे, ये अटैचमेंट आएगी। सो डजंट मैटर, सो कंडेंस नोटिफिकेशन इज द गुड ऑप्शन फॉर इट। डिलीटेड आइटम, देखिए कुछ होता है कभी कभी आइटम्स को डिलीट कर दिया जाता है, तो बच्चे जो है उन आइटम्स को टीचर करते हैं ना, हमने देखा है व्हाट्सएप में भी एक मैसेज पोस्ट किया फिर डिलीट कर दिया। यहाँ पे ऑप्शन है, अगर एक मैसेज आपके पोस्ट हो गया देन दैट मैसेज कैन बी रिट्रीव्ड, दैट मैसेज कैन बी सीन बाय द टीचर एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट। यहाँ पे डिलीट होने से पहले वो आर्चिव बॉक्स के अंदर चला जाता है। सो इफ यू क्लिक ऑन दिस, तो डिलीटेड आइटम्स को सिर्फ टीचर देख पाएगा, बच्चे नहीं देख पाएंगे। बट इफ यू स्विच इट ऑफ देन डिलीटेड आइटम्स को बच्चे एज वेल एज टीचर दोनों देख सकते हैं। ठीक है, देन गार्जियन समरी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट point and it is a very important the concept which is introduced over here, and it is very useful for the children like in higher classes
जो कि 8, 9, 10th, 11th, 12th एंड फॉर द चिल्ड्रन हु टेल्स लाइज एट द होम कि आज हमें होमवर्क नहीं मिला, आज हमारे स्कूल में कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। जहाँ पे ये सब चीजों की कंडीशंस आ जाती है ना, वहां पर हम क्या करेंगे, हम बच्चों के ईमेल के साथ में बच्चों के फादर मदर का ईमेल एड्रेस जो है वो लिंक कर देंगे। एज वी विल लिंक द पेरेंट ईमेल एड्रेस, तो जितनी भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन फादर मदर के साथ में होना शुरू हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। बस मैं क्लास गूगल मीट और बता देता हूँ। हम जहाँ पर लाइक एवरी क्लास बच्चे जो है वो किसी दूसरे हम सारे बच्चों के साथ में जब इंटरेक्ट करेंगे, सो दे नीड अ लिंक। देखिए आपको भी एक लिंक मिला था, अभी मैंने आपको लिंक भेजा था दोपहर को 12 बजे, तो आप लोग इस मीट को ज्वाइन कर पाए हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर एक परमानेंट मीट लिंक जो है वो जनरेट करते हैं। मैं यहाँ से सेव करता हूँ, आई शो यू, ये दिखेगा कहाँ पर, देखिए मीट लिंक यहाँ लिखा ब्लैंक है, अभी जनरेट मीट लिंक आ रहा है बच्चे के पास में। यहाँ पर अभी तक यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा होगा, ठीक है। अभी हमें करना क्या है, हम इसको एक लिंक क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ बट मैं सेटिंग्स में जाके कर रहा हूँ बिकॉज मैं आपको इस समय सेटिंग्स करा रहा हूँ। हमें यहाँ पे जनरेट मीट लिंक करना है, एक लिंक जनरेट होगा, दैट इज ऑल्सो ऑटो जनरेटेड लिंक, ठीक है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते बट आप रीसेट कर सकते हो अगर ये लिंक काम नहीं कर रहा तो। एंड इट हैपेंस इन द रेयर केस, ओके, एंड इट इज विजिबल टू स्टूडेंट, चेकबॉक्स ऑन किया हुआ है। नाउ आई एम सेविंग इट, ठीक। नाउ दिस लिंक विल बी डिस्प्लेड ओवर हियर। बच्चा इस लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली कभी भी मीट को ज्वाइन कर सकता है। अगर उसको क्लास मीट हो रही है तो वो कभी भी इस लिंक के ऊपर क्लिक करके मीटिंग को ज्वाइन कर सकता है। वो बच्चा इस लिंक को क्लिक करके मीटिंग ज्वाइन कर सकता है। सो दिस इज अ परमानेंट लिंक फॉर द मीटिंग एंड दिस इज अ कोड फॉर ज्वाइनिंग अ क्लास। Now, one more thing I need to tell you is all about the grading part. देखिए यहाँ पे ग्रेडिंग भी है नीचे, मैं चाहता तो इसको स्किप मार देता बट मैं यहाँ स्किप नहीं कर रहा हूँ बिकॉज जो ग्रेडिंग है वो मैं आपको एक अलग सेक्शन में बताऊंगा और डिटेल्ड ग्रेडिंग जो है वो सेशन 2 में कवर होगी। सेशन 1 में डिटेल्ड ग्रेडिंग कवर का ऑप्शन अभी हमें नहीं दिया है, ठीक है, वरना क्लास छोटी रह जाएगी। Now tell me please, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? Kindly text. All of you are requested to kindly text me कि यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? Okay, thank you. Thank you ज्योति मैम, thank you सोनू सर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। गुड। नाउ द थिंग इज, नाउ हाउ टू जॉइन अ क्लास। देखिए अब आपने क्लास बना दी, क्लास किसके लिए बनाई है आप लोगों ने? आपने क्लास बनाई है बच्चों के लिए, तो बच्चों को ज्वाइन कराना है हमें। सो व्हाट, हाउ विल चाइल्ड जॉइन अ क्लास? गो टू पीपल, जैसे ही आप पीपल पे क्लिक करेंगे यहाँ टीचर और स्टूडेंट लिखा आ जाएगा। नाउ जो स्टूडेंट हैं उनको ज्वाइन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक ये कोड है MGMKQHV जो मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया था, देखिए ये रहा, ठीक है। इस कोड को आप बच्चे को दे दीजिए एंड वो ज्वाइन क्लास पे जाके क्लिक करेगा, he will be able to join this class, ठीक है। दिस इज द मेथड 1 टू ज्वाइन अ क्लास। नाउ मेथड 2 टू ज्वाइन अ क्लास, click on this link, this is an invite student, click on it, type the name or email. Now this thing will work if and only if either the mail IDs are already saved on your system, and if the mail IDs are not saved on your system, then how will you do that? आपको सबके mail IDs भी याद नहीं होंगे। So what we can do is we will minimize these channels, we will open a file where all the email IDs are there. As we can see that email IDs are provided by the school in an Excel sheet, तो आपको वो Excel sheet खोलना है और वहां से जितने भी email IDs हैं
को कॉपी करना है। वेट अ मिनट। कंट्रोल सी कॉपी किया, मिनिमाइज इट, अगेन कम बैक टू योर क्लास, क्लिक ऑन द ऐड बटन, टाइप द नेम और द ईमेल एड्रेस। नाउ कंट्रोल वी आप पेस्ट कर लीजिए, ऐड रेसिपिएंट। अब आप देखिए यहाँ पे सारे ईमेल आईडीज जो हैं वो सेलेक्ट हो गए, ठीक है। एंड बाय वन क्लिक, जैसे ही मैं इनवाइट के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, इन सारे लोगों को इनविटेशन पहुंच जाएगा। सो लेट मी शो यू नाउ। आई डोंट वांट टू सेंड द इनविटेशन टू देम, सो आई गॉन बैक एंड कमिंग बैक टू इट। मैं चाहता हूँ एक बच्चे को तो चला जाए ना। Select it and then invite. As you will invite, ठीक है, invitation will be sent to the child and एक उसके नाम के आगे invited लिखा हुआ आ जाएगा and it will be there till the child joins the class. Now अब बच्चा कैसे ज्वाइन करेगा? Now child will join by clicking on the, उसके पास जो email ID आएगी वो ये है। देखिए आपने यही क्लास क्रिएट किया था, 1 2 3 4 शिफ्ट 1 4 है इंग्लिश। ये आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ ज्वाइन का बटन मिलेगा, ज्वाइन करना है, कराना है बच्चे को। ज्वाइन कराने के बाद में ऑटोमेटिकली क्लासरूम के ऊपर लेके जाएगा एंड वहां पे वो दिखा देगा कि आपका क्लास, आपने ये वाला क्लास ज्वाइन कर लिया है एंड उसका जो मीट लिंक है वो ये है। ओके, नाउ लुक, यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस, गार्जियन ईमेल एड्रेस यहाँ ऑलरेडी डिफाइंड है। एक्चुअली मैंने कल किया था, ठीक है। अभी मेरे पास में कोई डमी मेल आईडी और है नहीं, तो आई कैन नॉट शो इट टू यू हाउ टू डू दैट। बट जब आप किसी बच्चे को, मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ बेटा। मैंने कोई भी एक क्लास खोला, मैंने उसकी क्लास के पेपर पे गया, मैंने कोई भी बच्चा देखा, ये देखिए, है ना, ये जो डार्क ब्लैक हो रखे हैं ये वो बच्चे हैं जिन्होंने क्लास ज्वाइन कर लिया। जहाँ पे इनवाइटेड लिखा हुआ है ये वो है जो जिन्होंने इनविटेशन अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, स्टिल दे हैव नॉट ज्वाइन द क्लास। और हर नाम के आगे लिखा हुआ है इनवाइट गार्जियन। इनवाइट गार्जियन जहाँ पे लिखा होगा वहां पर आपको क्या करना है, इनवाइट गार्जियन जहाँ पे लिखा होगा वहां पे आपको क्या करना है, वहां पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा टाइप द नेम और ईमेल। अब आपको यहाँ पर बच्चे के पेरेंट का नाम लिखना है, मेल आईडी लिखना है, इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा। ये आप ग्रुप में नहीं कर सकते, ठीक है। बिकॉज ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये जरूरी नहीं है कि आप सब बच्चों का मेल आईडी यहाँ पर एंटर करें। मैंने कहा आपको जो नोटोरियस बच्चे हैं जो घर जाकर के ये एक्सक्यूज देते हैं कि आज हमें होमवर्क नहीं मिला, या आज कोई काम ही नहीं कराया गया, या स्कूल में क्या आज हमारी ऑनलाइन क्लास ही नहीं हुई, ये उन बच्चों के लिए है। आप यहाँ पर उनके डिटेल ईमेल आईडी डालिए पेरेंट्स का, उनके पेरेंट्स को भी मेल पहुंचेगा कि जी आज ये काम कराया। जैसे ही आप यहाँ पर मेल डाल देंगे, फॉर एग्जाम्पल आरुषि के फादर का नाम है ब्रह्म प्रकाश, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ब्रह्म प्रकाश। एज आई कैन शो यू फ्रॉम हियर, इस क्लास में जो उत्कर्ष लवानिया है उनके फादर का नेम यहाँ पे दिखा रहा है, बिकॉज यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी डला हुआ है अवधेश लवानिया। तो ये इनफैक्ट ये मेरा ही सन है। तो ये जो नेम दिखा रहा है यहाँ पे,
ये मेरा मेल आईडी डला हुआ है, तो जैसे ही इनको कोई एसएमएस जाता है या कोई मेल जाती है वो डायरेक्टली रीडायरेक्ट होकर के मेरे पास भी आती है। तो बाय दिस वी कैन ऐड अ स्टूडेंट, बाय दीज टू प्रोसेसेस वी कैन ऐड अ स्टूडेंट as well as their guardian. Now, if you want a teacher to be added in a group, like if there is a concept of collaborative learning जहाँ पे 3 टीचर 4 टीचर पढ़ा रहे हो, ठीक है, एक ही क्लास को पढ़ाना चाहते हो, या फिर एचएम जो है वो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के लिए ज्वाइन करना चाहती हो, तो वहाँ पे भी हमें करना यही है, जैसे जो भी इस ग्रुप का क्रिएटर है, ये मैंने क्रिएट किया है ग्रुप, तो वो क्या करें, यहाँ से इनवाइट लिंक करें और यहाँ पे उन 4 टीचरों का और एचएम का ईमेल एड्रेस, केवीएस डोमेन वाला ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप करें और उनको यहाँ पे इनविटेशन सेंड कर दें। ठीक है, एज द इनविटेशन विल बी सेंड टू देम, ठीक है, दे विल ज्वाइन दिस क्लास एज अ टीचर, बट अगर वो क्लास कोड के साथ ज्वाइन करेंगे देन दे विल एंटर दिस क्लास एज अ स्टूडेंट। यहाँ तक क्लियर हुआ? स्टूडेंट कैसे ऐड करना है, टीचर कैसे ऐड करना है, क्लियर? ओके मनीष सर, थैंक यू। डॉली मैम, नाउ कमिंग बैक, अब हमने क्लास क्रिएट कर लिया, हमने सेटिंग सारी सेट कर ली। नाउ आवर मेन पर्पस इज टू इज द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, यानी हमें इसके साथ में पढ़ाना कैसे है, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाई तो होती रहेगी, है ना, वो तो सीख जाएंगे, इनफैक्ट सीख भी जाएंगे, बट पढ़ाना कैसे है, इसको डायरेक्टली यूज कैसे करना है क्लासरूम सिचुएशन में, लाइक ऑफलाइन ऑनलाइन मोड के जरिए। ठीक है, वो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। जब हम यहाँ पे जाएंगे तो हमें मेनली यहाँ पे कुछ चीजें दिख रही हैं। देखिए यहाँ पे एक क्रिएट प्लस क्रिएट दिख रहा है, मीट दिख रहा है, गूगल कैलेंडर दिख रहा है, क्लास ड्राइव फोल्डर दिख रहा है। ठीक है, मीट इज जो हम फेस टू फेस अभी हम जो काम कर रहे हैं, दैट इज थ्रू गूगल मीट। गूगल कैलेंडर और क्लास ड्राइव फोल्डर, इन तीनों के बारे में अभी हम इस क्रिएट के बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं। व्हेन वी क्लिक ऑन द क्रिएट, देयर कम्स 6 ऑप्शन: असाइनमेंट, क्विक असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, रीयूज, पोस्ट एंड टेक्स्ट टॉपिक। नाउ एक लाइक क्या होता है, हर चैप्टर के ऊपर एक नंबर डला होता है, इफ यू कैन सी योर टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, लाइक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, और उनके सामने उनका नाम लिखा होता है। व्हाई दिस काइंड ऑफ थिंग इज देयर, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये कौन सा चैप्टर है, अदरवाइज हमें हर बारी चैप्टर गिनना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली व्हेन क्रिएटिंग एन असाइनमेंट, it is more important for us to create a topic. So topic can be like, अगर हायर क्लासेस में है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, बॉडी फिजिक्स, बॉडी सिस्टम पढ़ा रहे हैं, हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा रहे हैं हम, तो हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक चैप्टर रख लेते हैं। ठीक है, एक टॉपिक रख लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो एक सर्कुलेटरी सिस्टम टॉपिक रख लेते हैं, उसका जितना भी असाइनमेंट होगा वो उसी टॉपिक के अंदर मिलेगा आपको, वो एक टाइप का फोल्डर बन जाएगा आपका। ठीक है, तो टॉपिक आपको क्रिएट करना बहुत जरूरी है। टॉपिक सबसे पहले क्रिएट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं एक टॉपिक बना रहा हूँ, ग्रामर। ठीक है, एड। अब मैं ग्रामर के अंदर जितना भी काम पोस्ट करूंगा ना, वो मुझे यहीं पे नजर आएगा। मैं एक और टॉपिक क्रिएट करता हूँ, टॉपिक, ठीक है, शिप ऑफ डेजर्ट। इंग्लिश में प्रोज है आई थिंक। तो अब यहाँ क्या है, अब मैं जैसे ही शिप ऑफ डेजर्ट का कोई भी काम डालूंगा वो मुझे सारा इसी के अंदर लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, शिप ऑफ डेजर्ट, इसके नीचे 1 काम 2 काम 3 काम, ग्रामर के अंदर 1 काम 2 काम 3 काम 4 काम। सो like I have segregated or I have made a table content of the work that I am going to do in my class. ठीक, so what is the use of topic? I think I have already I have cleared it. Now moving on to the assignment. देखिए अब यहाँ पे जब हम देखें तो एक प्राइमा फेसी पे आप सब लोग समझते हैं असाइनमेंट क्या है, हम बच्चे को सिर्फ काम दे रहे हैं। ठीक है, क्विज असाइनमेंट क्या है, क्विज असाइनमेंट में हम बच्चे को क्विज़ेस देंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस देंगे। ठीक है, और इट विल बी यूज्ड फॉर असेसिंग अ चाइल्ड। आपको जब टेस्ट वगैरह कंडक्ट करने हो तब आप क्विज असाइनमेंट का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में करें और करें।
नाउ क्वेश्चन लाइक इफ यू वांट टू गिव अ प्रॉम्प्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन प्रॉम्प्ट डालना है मुझे, एक क्वेश्चन प्रॉम्प्ट डालना है, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। एक क्वेश्चन आपको प्रॉम्प्ट डालना है, आपकी जो भी क्वेरीज हो वो आप अपने पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हम जैसे ही जब हम आपसे पूछेंगे कोई प्रॉब्लम है तब आप हमसे वो समस्या पूछें, ठीक है। आप सभी लोगों से अनुरोध है, ठीक है। क्विज असाइनमेंट का प्रयोग आप तब करें, क्वेश्चन जब आप प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन कर रहे हो, आप इमीडिएटली पढ़ाते पढ़ाते बीच में आप चाहते हैं एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन बच्चों से पूछ लिए जाए, तब आप क्वेश्चंस का यूज करें, ठीक है। मटेरियल अभी मैं हम इन सबको डिटेल में भी कराऊंगा, आप परेशान मत होइए, ठीक है। आप मटेरियल की बात कर रहे हैं हम, जब आप लाइक आपने एक क्वेश्चन बैंक बना रखा है, यू वांट टू गिव दैट क्वेश्चन बैंक टू स्टूडेंट सो दैट दे कैन प्रैक्टिस एट होम, ठीक है। आपको आपने नहीं बनाया, आपको कहीं दूसरी जगह से मिला, आपको अच्छा लगा, आपने कहा ठीक है मेरे बच्चे भी ये करें, तो आप उस मटेरियल के अंदर पोस्ट करें, ठीक है। देन रीयूज पोस्ट, अगर आपको बार बारी कोई एक पोस्ट टेस्ट, जैसे आपने टेस्ट लिया उसी को रीटेस्ट लेना चाहते हैं 2 बारी 3 बारी, ठीक है, देन यू कैन यूज रीपोस्ट। आप इसमें से कोई भी एक चीज दो चीज किसी बच्चे की डिलीट हो गई, आप दोबारा उसको भेजना चाहते हैं, देन आल्सो यू कैन यूज रीपोस्ट, ठीक है। नाउ हम सबसे पहले असाइनमेंट पे चलते हैं। असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट जो है मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन आंसर टाइप चीजें हैं। आप क्वेश्चन लीजिए यहाँ पे, ठीक है। टाइटल मैंने ग्रामर लिया है, जैसे शिप ऑफ डेजर्ट लिया है मैंने, तो मैंने यहाँ पे लिखा शिप ऑफ डेजर्ट। इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, डाउनलोड दी, आपको जो भी इंस्ट्रक्शन देनी है, यूपी एंड आंसर, ठीक है। now मैं क्लिक पे ऐड करूंगा, देखिए अब यहाँ पे टोटल 8 ऑप्शंस आपको नजर आएंगे, इनफैक्ट 9 ऑप्शंस नजर आएंगे यहाँ पे, और हम सबको एक एक करके डिस्कस भी करेंगे कि उसको कैसे यूज करना है, ठीक है। नाउ 4 ऑप्शन ये है, पहले 4 गूगल ड्राइव, लाइक आपको कोई कंटेंट यहाँ पे ऐड करना है, देन यू कैन यूज गूगल ड्राइव, क्लिक ऑन इट। जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपको आपके गूगल ड्राइव पे ले जाएगा, जो आपका करंट गूगल ड्राइव है, ठीक है, जो कि KVS डोमेन वाला गूगल ड्राइव है। और आपको जैसे ही कोई चीज आप वहाँ पे ऑलरेडी आपकी सेव हो रखी होगी, ठीक है, मुझे ये बच्चे को देना है, मैं आपको सिर्फ एक प्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड नाउ ऐड करना है, आपने ऐड किया, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस, मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऐड कर दिया। देखिए ये मुझे असाइनमेंट में नहीं करना चाहिए था, इनफैक्ट ये मुझे करना चाहिए था मटेरियल में, बट वहाँ पे मेरे पास फाइल्स नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ड्राइव लिंक से ऐड कर दिया। नाउ यहाँ पे स्टूडेंट कैन व्यू फाइल, अब देखिए यहाँ पे ना ऑप्शंस इसके पास 3 मिलेंगे, व्यू फाइल का ऑप्शन है, मॉडिफाई एडिट का ऑप्शन है, और मेक अ कॉपी फॉर ईच। व्यू फाइल करूंगा तो ये कॉपी सबके पास जाएगी, सब बच्चे देख सकते हैं, इसको छेड़ नहीं सकते, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बट एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। बट यहाँ पे एडिट फाइल कर दिया, अब एडिट फाइल कर सकते हैं, बट एडिट करेंगे तो हर बच्चे को, अभी मान लीजिए किसी एक को एडिट किया तो फिर दूसरा कर देगा, थोड़ी देर बाद तीसरा कर देगा, देन इट विल मेक अ प्रॉप, पता ही नहीं लगेगा हो क्या रहा है वहां पे। सो व्हाट आई विल गो फॉर इट, मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट। मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ये हर बच्चे के लिए एक कॉपी बना करके रख देगा, हर बच्चे के पास कॉपी जाएगी, और हर बच्चे के पास इंडिविजुअल कॉपी जाएगी, और हर बच्चा इस कॉपी के ऊपर एडिट कर सकेगा बाय यूजिंग अ पेन। उसके पास में एक पेन ऑप्शन आएगा जहां पे वो इसको एडिट कर पाएगा, ठीक है। सो दिस इज एडिंग अ गूगल ड्राइव लिंक, गूगल ड्राइव मटेरियल फ्रॉम द गूगल ड्राइव लिंक। देखिए आपने कोई अच्छी चीज देखी, वीडियो लिंक देखा कहीं पे, लाइक आपने कहीं पे कोई वर्कशीट देखी, आप उसका लिंक लीजिए, लिंक के यहाँ पे लिंक कॉपी कीजिए, वहां से लिंक कॉपी पेस्ट कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल V पेस्ट करेंगे, एक लिंक पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वैलिड नहीं है इसलिए ये दिखा रहा है, ठीक है, लिंक पेस्ट हो जाएगा और आपका मटेरियल बच्चों के पास पहुंच जाएगा। देन द थर्ड ऑप्शन इज फाइल, आपके डेस्कटॉप के ऊपर कोई फाइल पड़ी हुई है एंड यू वांट टू इनकॉर्पोरेट दैट फाइल
तो आप क्या करेंगे, उस फाइल पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट फाइल फ्रॉम द डिवाइस क्लिक करेंगे। ठीक है, आपको ये इमेज फाइल को डालनी है या जो भी है पीडीएफ डालना है, कुछ भी डाल सकते हैं आप। ओपन करिए, ठीक है, एंड अपलोड कर दीजिए। ठीक है, वट एवर द फाइल इज बीइंग अपलोडेड वो यहाँ पे दिखा देगा। देन ऐड कीजिए। ये मैं देखिए एक बार में एक ही चीज कीजिएगा, अदरवाइज चाइल्ड विल गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या चीजें इंसर्ट कर सकते हैं। YouTube पे क्लिक करेंगे, देन देयर विल बी अ लिंक ऑफ द YouTube। यहाँ पे सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, बट थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करेंगे। अगर असाइनमेंट है तो असाइनमेंट में YouTube लिंक देने का कोई लॉजिक मेरी समझ में नहीं आता, बट फिर भी इफ यू वांट टू गिव यू कैन गिव। ठीक है, नाउ यहाँ पे शिप ऑफ द डेजर्ट है, मैं शिप ऑफ द डेजर्ट लिख के देख रहा हूँ, तो कुछ मिलेगा तो। ठीक है, एक एनसीईआरटी क्लास 3 एक्सप्लेनेशन पूरी फुल हिंदी मिल गया मेरे को। मैंने इसको क्लिक किया, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो वहां पे लिंक हो जाएगा गूगल ड्राइव पे। सो लाइक दिस वी कैन इंसर्ट द मटेरियल फ्रॉम ऐड कॉलम। अब यहाँ पर आप यहाँ जाएंगे, लिंक के अंदर देखिए आपके पास में बहुत सारा एनसीईआरटी के लिंक्स होते हैं बुक्स के। अगर बच्चे के पास बुक नहीं है तो आप एनसीईआरटी की बुक लिंक भेज दीजिए। ठीक है, एनआरओईआर के वेबसाइट के लिंक्स भेज सकते हैं आप यहाँ पे। तो देयर आर एन नंबर ऑफ एजुकेशनल फ्री ऑनलाइन साइट्स जो उनका कॉपीराइट नहीं है, उनको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना। ये तो है किसी और का मटेरियल ऐड करने का, बट अगर आप अपना मटेरियल खुद क्रिएट करना चाहते हैं, खुद ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, requested to kindly switch off the mic, Seema ma'am. इसमें देखना मेरा कैमरा ऑन है क्या? ठीक है, अब आपके पास मैंने कहा था टोटल 9 ऑप्शन है, तो मैंने 4 यहाँ डिस्कस कर लिया। ये हमने कहीं दूसरे का मटेरियल उठा के पोस्ट कर दिया, बट अगर मैं क्रिएट पे जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं। ये सारे ऑप्शन यहाँ भी यूज हो सकते हैं, बट मैं अब आपको इनको नेक्स्ट फॉर्मेट में यूज करना सिखाऊंगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, कुछ यहाँ की सेटिंग्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, मुझे इनका वैल्यू पॉइंट डिफाइन करना है। ठीक है, आई वांट दिस की ये सारा, मैंने कहा था आपको एक बारी में एक ही असाइनमेंट दीजिएगा। ये सारा काम जो है वो 15 नंबर का है। लेट इट बी 5 मार्क्स फॉर ईच कंप्लीटिंग द ईच कंटेंट। ओके, नाउ ड्यू डेट मेरे जहन में एक वो है कि लाइक आज 17 तारीख है, तो बच्चे इस काम को 20 तारीख तक पूरा कर लें। तो मैं उनको 20 तारीख की डेडलाइन दिया, टाइम ऑप्शन दे दिया रात के 12 बजे का खत्म। ठीक है, टॉपिक देखिए, अब मैंने कहा था टॉपिक, अब मैंने ये टॉपिक लिया है शिप ऑफ द डेजर्ट से, तो शिप ऑफ द डेजर्ट। अब मुझे यहाँ पे रूब्रिक्स बनाना है। एज many of you know how to create a rubrics, but if you don't know how to create a rubrics, it will be discussed in the second session. ठीक है, यानी नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको हल्का फुल्का सजेशन दे देता हूँ कि रूब्रिक्स कैसे क्रिएट करते हैं। हमें क्या करना है, क्राइटेरिया चैप्टर का टाइटल यहाँ पे क्राइटेरिया टाइटल डिफाइन करना है। ठीक है, पॉइंट लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप रूब्रिक्स जब भी बनाए जाते हैं तो 5 4 3 2 1 या 4 3 2 1 बेसिस होता है उनका। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 1 पॉइंट कब मिलेगा, 1 पॉइंट कब मिलेगा आपको यहाँ बताना है। 2 पॉइंट कब मिलेगा आपको यहाँ बताना है। 3 पॉइंट उसको कब देना है वो यहाँ डिफाइन करना है। 4 पॉइंट उसको कब देना है वो आपको यहाँ डिफाइन करना है। 5 पॉइंट कब देना है वो आपको यहाँ डिफाइन करना है। ठीक है, दिस इज फॉर शिप ऑफ द डेजर्ट टेस्ट। क्राइटेरिया डिस्क्रिप्शन है आपका, लेट इट बी स्पेलिंग। अगर बच्चे ने सारी की सारी स्पेलिंग सही लिखी है तो 5 नंबर मिलेंगे उसको। अगर 4 सही है तो 4, 3 सही है तो 3, 2 सही है तो 2, 1 सही है तो 1। दिस इज अ रूब्रिक्स।
एंड इसकी ग्रेडिंग 5 में से दी जाएगी। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ रूब्रिक्स। अब ये मैंने खाली स्पेलिंग्स ली है, मैं एक क्वेश्चन एक असाइनमेंट में 4 क्राइटेरिया भी ले सकता हूँ, 3 क्राइटेरिया भी ले सकता हूँ, 5 भी ले सकता हूँ, मैं जितने क्राइटेरिया चाहूँ ले सकता हूँ। और जैसे ही मैं ऐड क्राइटेरिया करता हूँ तो एक नीचे दोबारा क्राइटेरिया ऐड हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ अ रूब्रिक्स विल बी डिफाइंड, और मुझे ये सेव भी करना है। अभी ये देखिए ये हो गया ना, ये एक्स्ट्रा है तो इसको डिलीट कर देता हूँ, और डिलीट दिस क्राइटेरिया and then I will save it. Okay. तो ये रूब्रिक्स 5 पॉइंट रूब्रिक्स यहाँ पे डिफाइन हो गया। मेरा 15 पॉइंट का है, 15 पॉइंट का है, 5 पॉइंट रूब्रिक्स डिफाइन किया है। देयर इज अ लाइक कंट्रोवर्सी टाइप चीज है ये। ठीक है, तो 15 पॉइंट ले रहे हो तो 15 पॉइंट का रूब्रिक्स डिफाइन करो। नाउ आफ्टर डूइंग दिस, देखिए अब आप, मैंने कहा आपको, मैं चाहता हूँ ये सारे बच्चों के पास जाए, देन आई विल क्लिक ऑल स्टूडेंट्स, बट मैं चाहता हूँ नहीं ये कुछ बच्चों के पास जाए, सिलेक्टेड 20 बच्चों के पास, तो मैं यहाँ पे चेकबॉक्स के थ्रू ये सेलेक्ट कर लूंगा। ये एक बच्चा, अब मैं तो एक ही दिखा रहा है यहाँ पे, तो मैं एक को सेलेक्ट करता हूँ तो ऑल दिखाता है वो। ठीक है, तो एक को यहाँ पे चेकबॉक्स को ऑन कर दीजिए, ऑन, एंड यू कैन नाउ असाइन इट। बट अब मेरे को ये है कि मैं आज नहीं असाइन करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये कल सुबह 7 बजे असाइन हो, तो मैं शेड्यूल कर दूंगा इसे। ठीक है, असाइन। अब मैं इसको 18 तारीख को, ठीक है 18 तारीख को ये 8 बजे दिखा ही रहा है, अरे वेरी गुड, पर मैं 7 बजे चाहता था, तो मैं इसको बैक स्पेस करके 7 बजे कर देता हूँ, 7 बजे शेड्यूल। अब मैंने इसको स्केड्यूल कर दिया है। ठीक है, अब ये कल सुबह 7 बजे अपने आप पोस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे घर में नेट नहीं आ रहा, मेरे घर में ये नहीं आ रहा, मेरे फोन में ये नहीं हो रहा, मेरे को ये प्रॉब्लम है ना, कोई नहीं। आज कर लो, आज आप फ्री हो, आज आप इसको स्केड्यूल कर लो। जैसे ही आप स्केड्यूल करोगे कल सुबह 7 बजे अपने आप चला जाएगा। ठीक है, सो एक असाइनमेंट मैंने इनको दे दिया। नाउ गोइंग टू द क्विज असाइनमेंट। देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे सारे। क्विज जो है वो गूगल फॉर्म है। ठीक है, इसका यूज जो है वो टेस्ट लेने के लिए या फिर एक बेसिक असेसमेंट के लिए करना है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कंप्लीट इन 30 मिनट्स। ठीक है, मैंने ऐड बता दिया आपको। देखिए अगर आपने ऐड कुछ करना है यहाँ से तो भी आप करके दे सकते हैं। आपने ऑलरेडी कहीं लिंक बना रखा है गूगल, अपनी गूगल ड्राइव पे, तो आप वहां से लिंक कर दीजिए। कोई फाइल आपने डेस्कटॉप पे बना के रख रखी है तो आप वहां से भी लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन ये सारे खुले हुए हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। बट मेरा अभी यहाँ पे मेन चीज है, मैं आपको बताऊं गूगल क्विज कैसे बनती है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे गूगल डॉक्स, स्लाइड, शीट, ड्राइंग एंड फॉर्म। ठीक है, गूगल डॉक इज लाइक योर MS वर्ड, स्लाइड इज लाइक योर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, गूगल शीट इज लाइक योर माइक्रोसॉफ्ट लाइक एक्सेल शीट, ड्राइंग इज लाइक योर पेंट, एंड फॉर्म इज लाइक योर एडोबी फॉर्म्स और गूगल फॉर्म्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इसको लिया है। अरे सॉरी, बना ही हुआ है, मुझे दूसरा नहीं लेना। This is a blank quiz. Click on it. जैसे ही आप इस गूगल फॉर्म की ब्लैंक क्विज पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक इंटरफेस आएगा। ठीक है ना, सबसे पहले हम इसकी सेटिंग्स पे चलते हैं। नहीं, सेटिंग्स पे नहीं, सबसे पहले हम क्विज बना लेते हैं। ब्लैंक क्विज में हम लिखें शिप ऑफ डेजर्ट। ठीक है, फॉर्म डिस्क्रिप्शन लाइक MCQs मैंने कह दिया, बच्चों को दे दिया कि MCQs हैं, आपको करने हैं। ठीक है ना, दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है। ठीक है, नाउ देयर आर n नंबर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यानी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस उसमें से यहाँ पे स्पेसिफाई करे हैं, वो देखते हैं हम जरा। पहले जहाँ मल्टीपल चॉइस लिखा हुआ है वहां पे क्लिक करेंगे ब्रेक डाउन ऑप्शन पे, तो यहाँ पे ये वाले टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपको नजर आएंगे। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, पहले ये समझते हैं ये टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है। लाइक शॉर्ट आंसर टाइप इज अ 1 word or 1 sentence, 1 liner क्वेश्चन।
देन पैराग्राफ इज लाइक आपको 10 लाइनें लिखवानी है जो आप पीछे डिस्क्रिप्शन ले देते हैं, या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आपके पैराग्राफ में आ जाएंगे। मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स एंड ड्रॉप डाउन, ये तीनों फॉर्मेट एक ही टाइप का फॉर्मेट है। इसमें क्या है, मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शंस आर देयर एंड 1 इज करेक्ट, सो द चाइल्ड नीड टू चेक द करेक्ट बॉक्स। ठीक है, चेक बॉक्सेस। नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल चॉइस एंड चेक बॉक्सेस? चेक बॉक्सेस के अंदर आप 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऑप्शन, सारी ऑप्शन भी सही कर सकते हैं। लाइक मल्टीपल ऑप्शन के साथ में आप चेक बॉक्स यूज करेंगे। देन ड्रॉप डाउन, देखिए ड्रॉप डाउन तो अभी हम सब देख ही रहे हैं यहाँ पे ना। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऐसे ही चारों ऑप्शन जो आप लिखेंगे वो ऐसे क्लिक करने पे आएंगे चारों। आपको जो सही होगा उसको चेक इन करना है, उसको सेलेक्ट करना है। मैंने ये सेलेक्ट किया तो जो मैंने सेलेक्ट किया वो यहाँ लिखा हुआ दिखा दिया उसमें। ठीक है, सो दिस इज अ ड्रॉप डाउन। नाउ लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस ग्रेड एंड चेक बॉक्स ग्रेड, ये तीनों जो हैं ये बेसिकली आपने अगर मैच दी फॉलोइंग देखे हो, मल्टीपल मैच दी फॉलोइंग, यानी 4 कॉलम है, 4 रोज हैं, उनमें सही और करेक्ट वर्ड स्पेसिफिकली वही आएगा जहां उसको होना चाहिए। ठीक है, ये वहां पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, ग्रामर के अंदर आपने सेट ऑफ वर्ड्स दे दिए, लाइक 20 वर्ड्स आर गिवन टू देम एंड यू आस्क देम टू अलाइन देम एट द नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। ओके, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। तो वो आप जब बच्चा उन वर्ड्स में से चूज करके लिखेगा तो नेम को नेम के कॉलम में ही लिखेगा, प्लेस को प्लेस के कॉलम में ही लिखेगा। ठीक है, सो दैट काइंड ऑफ वर्ड क्वेश्चन कैन बी इन given in the form of linear scale, multiple choice grade and checkbox grade. So now मैं यहाँ पर आपको 2-3 क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ताकि हम ये देखें कि क्वेश्चन और कैसे ऐड करते हैं इसके अंदर। नाउ अनटाइटल्ड क्वेश्चन के अंदर आपने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया वाई देन मल्टीपल चॉइस दिया। नाउ ऑप्शन में आपने लिखा add option, then add option, now 4 options are given to you. Now you need to answer the correct option, click on it। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 वैल्यू पॉइंट, करेक्ट आंसर इज कैमल, करेक्ट इट एंड डन। नाउ इसका करेक्ट आंसर क्या है, कैमल है। ओके, वैल्यू पॉइंट 1 है। नाउ देयर आर सम मोर थिंग्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिक्वायर्ड। ठीक है, इस रिक्वायर्ड को ऑन करेंगे। ठीक है, इस रिक्वायर्ड को ऑन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये मैंडेटरी हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन को करे बगैर बच्चा आगे नहीं जा सकता। समझ गए, इस क्वेश्चन को करे बगैर बच्चा आगे नहीं जा सकता। हाँ, at that time the question will be stacked over there. So अगर आप इसको जनरल क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन मानते हैं कि नहीं बच्चे को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, तो आप इसको ऑन कर दीजिए। बट इफ यू वांट कि ठीक है बच्चा छोड़ना चाहे छोड़ सकता है, एंड यू प्लीज डू नॉट चेक इन, उसको ऑफ रहने दीजिएगा। ठीक ना, यहाँ पर जाएंगे तो एक इमेज बनी हुई है, इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो आप पिक्टोरियल क्वेश्चन बच्चों को दे सकते हैं। पिक्टोरियल क्वेश्चन के लिए आप कहीं से भी इमेज उठाने की देख लीजिए, आप गूगल से उठाना चाहते हैं, गूगल ड्राइव से उठाना चाहते हैं, लिंक देना चाहते हैं, कैमरा यूज करना चाहते हैं, और यू वांट टू अपलोड इट फ्रॉम दी योर सिस्टम। आप जहां से भी इमेज देना चाहते हैं बच्चे को इमेज दे करके, ठीक है, जहां से भी इमेज देना चाहते हैं इमेज दे करके बच्चे को क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। लाइक 4 क्वेश्चन आपने एक इमेज दे दिया और उस इमेज से आपने 4 क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। ना ये क्वेश्चन हो गया।
Now one question is over. मैं ऐसे कंट्रोल Z कर रहा हूँ ताकि वो फोटो चला जाए. Now I need to add another question. Then add question. The question will be added. Next question will be there. ठीक है. टेक्स्ट सेटिंग करना चाहते हैं आप, टेक्स्ट को डिफाइन करना चाहते हैं, डिजाइनेटेड टेक्स्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे टाइप हैं यहाँ पे, ऑप्शंस हैं. ठीक है. आपको टाइटल ऐड करना है वो कर सकते हैं आप. ठीक है. इंपोर्ट क्वेश्चन करना है. देखिए इंपोर्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड हाउ टू यूज इट. यू क्लिक ऑन इट. जैसे ही आप इंपोर्ट क्वेश्चन करेंगे और आपके पास में मान लीजिए पिछले 5 क्विज़ेस बनी पड़ी हुई हैं और आप उसमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन चाहते हैं, तो आपने क्या किया, इंपोर्ट ऑप्शन किया और ब्लैंक क्विज, सॉरी, जो क्विज से आप क्वेश्चन शो करना चाहते हैं उस क्विज को आपने क्लिक किया एंड यू सेलेक्ट दैट. ठीक है. तो वहां पे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, आप कौन कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट करना चाहते हैं. मेरे को खाली ये क्वेश्चन सेलेक्ट करना है. ठीक है. या इंपोर्ट ऑल 4 क्वेश्चंस ऑप्शन आया है, मैं तो सारे कर लेता हूँ. सेलेक्ट ऑल किया. ठीक है. अब हुआ क्या, जो 2 क्वेश्चन बनाए थे उसके बाद एक नेक्स्ट सेशन के अंदर, उसके बाद एक नेक्स्ट सेशन आएगा, उसके अंदर सारे क्वेश्चन वो वाले आ जाएंगे जो मैंने पुरानी वाली क्विज में बनाए थे. ठीक है. देन कम्स ऐड इमेज. इमेज डालने का ऑप्शन बता दिया आपको हमने. ऐड वीडियो. वीडियो डालने का ऑप्शन बता दिया हमने. ऐड सेक्शन. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ सेक्शन. देखिए मैंने आपसे कहा कि ये क्विज जो है इट इज वेरी गुड फॉर असेसिंग वन वर्ड आंसर. ठीक है. एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, चेक बॉक्स टाइप क्वेश्चन, इन सब के लिए. बट इट इज नॉट दैट गुड फॉर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. तो आप ये काम कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन आपने डिस्क्रिप्टिव दे दिए, 2 क्वेश्चन, सॉरी 10 क्वेश्चन आपने ऑब्जेक्टिव दे दिए एंड 2 क्वेश्चन आपने डिस्क्रिप्टिव दे दिए. तो जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देने हैं आपको वो एक अलग सेक्शन में दे देंगे. इसको क्लिक करके एक अलग सेक्शन क्रिएट करेंगे. इसी के नीचे क्रिएट हुआ है. ठीक है. यहाँ पर एक सेक्शन डाल दीजिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और यहाँ पर आप 2 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव दे दीजिए. ऊपर वाले का जो असेसमेंट है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. ठीक है. जहाँ से जो जो करेक्ट आंसर आपने लिखे हैं उसके अनुसार, और इनको आप मैन्युअली चेक कर दीजिएगा. सो योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व. ठीक है. आफ्टर दैट नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू गो टू द सेटिंग्स. सेटिंग्स पे जाएंगे. ठीक है. अब सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, क्योंकि सेटिंग्स आपको ये डिफाइन करती हैं कि आप क्या मतलब आपको क्या क्या रिस्ट्रिक्शन डालनी है वहाँ. कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस. देखिए बाय डिफॉल्ट अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी बाय डिफॉल्ट जो रिस्पॉन्सेज होंगे उसमें ईमेल एड्रेसेस आ जाएंगे. ठीक है. रिस्पॉन्स रिसिप्ट. ठीक है. बच्चा अगर रिस्पॉन्स रिसिप्ट मांगता है तो वो रिस्पॉन्स रिसिप्ट उसके पास मिल जाएगा, मतलब उसको सारे ऑप्शंस दिखाई दे देंगे आंसर्स सबमिशन के बाद में. ठीक है. अगर ऑलवेज करते हैं तो मैंडेटरीली दिखाई दे जाएंगे. यहाँ पे वो दिखाएगा, ऑप्शन दिखाएगा वहां पे, इफ यू नीड रिस्पॉन्सेज, करेक्ट रिस्पॉन्सेज, क्लिक हियर, वो वहां दिखा देगा ना. रिस्ट्रिक्ट ये मैंने आपको पहले बता दिया. जैसे मैंने आज भी मैं डिनाई कर रहा था बट फिर भी मैंने आया अलाउड. अगर केवीएस के अगर केवीएस डोमेन से कोई दूसरा बच्चा रिस्पॉन्ड करेगा उसको तो वो आंसर नहीं लेगा. लिमिट टू वन रिस्पॉन्स. I want only a child to respond once in a time. एक बारी में सिर्फ एक ही बार रिस्पॉन्स, एक क्वेश्चन पेपर में एक ही बार रिस्पॉन्स करे एक मेल आईडी से, तो मैं इस बॉक्स को चेक इन कर दूंगा. तो बच्चा एक बार ही सबमिट करने के बाद दूसरी बार सबमिट नहीं कर पाएगा. एडिट आफ्टर सबमिशन. एक बार सबमिट करने के बाद एडिट भी नहीं कर पाएगा वो. अगर मैं इसको क्लिक कर दिया तो वो एडिट कर देगा, नहीं किया तो नहीं कर पाएगा. सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज. इसको मैं क्लिक कर सकता हूँ. ठीक है. बच्चे को रिजल्ट साथ के साथ पता लग जाएगा. मुझे तो पता लग ही जाएगा एज ए टीचर, बच्चे को भी पता लग जाएगा आउट ऑफ 10 मेरे कितने मार्क्स हैं, 10 हैं, 20 हैं, 2 हैं, 4 हैं. ठीक है. एंड देन प्रेजेंटेशन. बच्चे को प्रोग्रेस बार और दिखाई देगा. अपना शफल क्वेश्चन ऑर्डर. देखिए ये आपने देखा होगा, आप जब एंट्रेंस एग्जामिनेशंस वगैरह आपने क्वेश्चन पेपर्स चेक करे होंगे तो सेट्स आते हैं 1 2 3 4 5 जैसे भी आते हैं. उनमें क्वेश्चन सेम होते हैं बट द क्वेश्चन ऑर्डर्स आर डिफरेंट. तो आप इसे कर देंगे तो आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो शफल होते रहेंगे. बट याद रखिएगा अगर आपने पिक्चोरियल क्वेश्चन दिए हैं तो शफल ऑर्डर मत कीजिएगा, क्योंकि पिक्चोरियल क्वेश्चन में एक क्वेश्चन
लाइक पिक्चर के बेस पे जब क्वेश्चंस होते हैं 4 क्वेश्चन, तो वो शफल ऑर्डर कर देगा। अब बच्चा पिक्चर कहीं होगी और क्वेश्चन कहीं होगा तो वो देख नहीं पाएगा। So do not do it when you are at like if you have given some picture questions. Then coming on to the quizzes, हम already quiz mode पे हैं, तो मेगा क्विज अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो वो क्विज मोड से चला जाएगा। So general and then save it. Now I have saved the settings. अब देखिए इसको कहीं पे सेव करने की जरूरत नहीं है, कहीं सेंड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑल चेंजेस आपकी ड्राइव में हो चुके हैं। ठीक है, दिखता कैसा है ये, आप पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा कुछ दिखाई देगा। नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट जा ही नहीं पाऊंगा जब तक मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा। ठीक है, आई कैन नॉट गो नेक्स्ट क्योंकि मेरे पास दिस क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड क्वेश्चन। ओके, सो आई मस्ट चेक इट आउट। बाकी ये तो बहुत आसान है, कस्टमाइज थीम, आप इसकी सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, कैसे भी ये सब चीजें जो है दैट यू कैन डू बाय योर ओन। ठीक है, सो इट्स नॉट अ वेरी ह्यूज थिंग। ना होना क्या है, मैंने अभी एक क्विज बना के क्लोज किया एंड आई गो टू माय क्लास वर्क। यहाँ पे ब्लैंक क्विज फॉर्म था, इसको क्लिक करते हैं, आप देखिएगा यहाँ पे जो क्विज आपने अभी बनाई शिप ऑफ द डेजर्ट की वो पूरी की पूरी यहाँ पर है। ठीक, क्लिक, वैल्यू पॉइंट्स चेंज करे मैंने यहाँ पे, ठीक है, ड्यू डेट डिफाइन करी 30 तारीख, टाइम, ठीक है, टॉपिक शिप ऑफ द डेजर्ट, ठीक है, रूब्रिक्स ऐड करना है तो अब आई ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू क्रिएट अ रूब्रिक्स क्रिएट करके ऑल स्टूडेंट्स को भेजिए एंड if you want to schedule it, if you want to send it right now, assign कर दीजिए। ये अभी के अभी सारे बच्चों के पास चला जाएगा। So I am assigning it. As you click the assign button, this Google form will go to all the students। अब आप इसको क्लिक कीजिए, शिफ्ट ये वाला, ये मैंने अभी किया ना, ठीक है, complete in 30 minutes, turn in and one assign। Now again coming back to this question, this is a single question that can be posted, but अभी मैं इसको नहीं कराऊंगा। ठीक है, हम इसका यूज अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। Material is somewhat similar to that of assignment, only the difference is that there is no grading। यहाँ पे ग्रेडिंग का ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि भैया जब आप स्टडी मटेरियल दे रहे हो तो स्टडी मटेरियल में ग्रेडिंग का ऑप्शन नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे दिया भी नहीं है उसने। So like this you can give the classwork to the student। I need your valuable feedback। ये यहाँ तक समझ में आया या किसी को कोई प्रॉब्लम है वो मुझसे पूछ सकता है। यहाँ am I clear to all of you? Till now am I clear to all of you? All clear so far? Yeah, thank you। Yes sir, Kanika ma'am, okay, okay, Jyoti ma'am, Anita ma'am, thank you। चलिए, now we should go ahead। क्रिएट ऑप्शन हमारे पास हमने सारे डिस्कस कर लिए आपके साथ में। ठीक है, now come on to the grades। as I have already told you how to create a grade। मैंने एक असाइनमेंट बच्चे को दिया था तो उसके ग्रेड्स आने चाहिए। जब आप असाइनमेंट हम बच्चे को देंगे तो उसके ग्रेड्स आने चाहिए ना, तो वो ग्रेड्स कैसे देखिए, अब इस बच्चे को अलॉटमेंट किया था तो इसने तो अभी तक काम किया नहीं, तो यहाँ पे ऑटो आंसर में तो इसका ग्रेड आएगा नहीं। तो हम एक ना दूसरी क्लास चेक करते हैं कि हमने वहां पे कुछ काम दिया था तो उसके ग्रेड्स वगैरह कैसे आ रहे थे। मैंने ये क्लिक किया, ठीक है, ये मैंने बहुत दिनों पहले काम दिया था कुछ बच्चों को। तो इन द ग्रुप ऑफ 75 स्टूडेंट्स 73 ने तो ये असाइनमेंट जमा ही नहीं कराया मुझे। 77 में से 73 ने तो जमा ही नहीं कराया। 2 ने मुझे जमा, 4 ने जमा कराया, उसमें से 2 को मैंने चेक करके वापस दे दिया, 2 मेरे पास अभी भी पेंडिंग है, ये दोनों। ठीक है, तो मुझे करना क्या है ग्रेडिंग में,
मुझे मैं यहाँ पहले ग्रेडिंग से पहले मैं आपको ना कॉपी करेक्शन करना सिखा देता हूँ एक, ठीक है। हाउ टू गिव द कमेंट्स ऑन द नोटबुक। एक बच्चे को खोलिए, उसने जो भी असाइनमेंट आपको सबमिट किया है आप उस असाइनमेंट को खोलें। जब आप कोई असाइनमेंट खोलेंगे, ठीक है, तो ये कुछ देखिए, यहाँ ऑलरेडी मैंने एक कमेंट दे रखा है, तो मैं कोई दूसरा पेज खोलता हूँ। ये इमेज मैंने खोल लिया। ये मैंने लिया ना। मैं थोड़ा सा जूम करके ये देखना चाहा कि जो इस बच्चे ने किया है वो सही किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो ये आंसर सही है मुझे दिख रहा है, ये भी कुछ कुछ सही है। व्हाट आई नीड टू डू इज, यहाँ पर एक कमेंट का ऑप्शन है, गो एंड क्लिक ऑन दिस कमेंट ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे पार्ट को सेलेक्ट कीजिए, मुझे यहाँ कमेंट देना है। एंड व्हाट इज द कमेंट, गुड अटेम्प्ट, ठीक है। कमेंट भी सही है आंसर इसका, मुझे यहाँ पे कमेंट देना है, वेरी करेक्ट। ठीक है। सो यू कैन नाउ लाइक यू हैव कमेंटेड ऑन ऑल द, आपने जो जो जहाँ पे भी कमेंट करना था आपने वहाँ पे कमेंट कर दिया, बट आप यहाँ रिटर्न नहीं किए अभी तक। और रिटर्न मैंने किया भी नहीं, जानबूझ के नहीं किया, बिकॉज रिटर्न मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक मेरे सारे पेजेस चेक ना हो। अगर मैंने 2 पेज चेक किए, जैसे देखिए मैंने ये पेज तो चेक कर दिया इसका, ये मैंने कमेंट डाल दिया, इसलिए ये पेज मेरा चेक कर दिया, ठीक है। और ये पेज चेक कर दिया, बट बाकी 7-8 पेजेस चेक नहीं हुए हैं। एक इस पे मैंने कमेंट नहीं डाला, ये चेक नहीं हुआ है। तो जब ये चेक नहीं हुआ और मैंने रिटर्न कर दिया, तो इट मींस द अनचेक्ड नोटबुक हैड बीन रिटर्न बैक टू द चाइल्ड, ठीक है। तो वो हमें नहीं करना है। तो रिटर्न करने से पहले हमें सारे पेजेस चेक करने हैं। आफ्टर चेकिंग ऑल द पेजेस, ठीक है, आपको जो मार्क्स बच्चे को देने हैं वो यहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक है। आपको बता दो यहाँ पे नहीं, ये चिराग को दिए हैं, अब 18 है मान लीजिए, मुझे इसका काम अच्छा नहीं था, इसको 15 देने थे तो मैंने 15 कर दिया, ठीक है। 15 कर दिया तो इसको 15 मार्क्स मिल गए। और 15 मार्क्स देने के बाद में मैंने इसकी कॉपियां भी सारी चेक कर दिया, सारे पेजेस क्लिक किया, और ये मैंने इसको रिटर्न पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं रिटर्न पे क्लिक करूंगा तो होगा क्या, मेरा ऑल स्टूडेंट पे जाने पे यहाँ पे ग्रेडेड 3 हो जाएगा और टर्न इन पे 1 दिखाएगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास उस कंडीशन में अगर मैं चिराग का काम वापस दे देता हूँ तो एक कॉपी अनचेक्ड रह जाएगी, 73 मिसिंग होगा काम, और 3 ग्रेडेड हो जाएगा। दिस इज हाउ टू चेक अ नोटबुक एंड हाउ टू गिव द ग्रेड्स टू द चाइल्ड ऑन सिस्टम, ऑन कंप्यूटर, ठीक है। आप अगर लैपटॉप पे या फिर सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो ग्रेड्स कैसे देने हैं ये बताया। बट अगर आप फोन पे हैं या आईपैड पे हैं या आईफोन पे हैं तो आपकी कॉपी करेक्शन का प्रोसीजर बदल जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा एज बिफोर एंडिंग द क्लास, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा बिफोर एंडिंग द क्लास, क्लास खत्म होने से पहले वो मैं आपको दिखाऊंगा। बट ग्रेड देने का प्रोसीजर वहां भी है, यही है। दिस इज अ मैनुअल ग्रेडिंग, बट अगर आपने ऑटोमेटिक ग्रेडिंग का प्रोसीजर ऑन किया हुआ है, लाइक आई हैव डन, अभी जो रिसेंट क्वेश्चन बनाए हैं उनके अंदर हमने रूब्रिक्स बना करके क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, वहां पे जो प्रोसीजर है उसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। वो प्रोसीजर में आपका ऑटो ग्रेडिंग आएगा बच्चे का, उस कंडीशन में ऑटो ग्रेडिंग आएगा, ठीक है। सो द ग्रेड पार्ट इज ऑलमोस्ट ओवर, ठीक है। नाउ आई नीड योर फीडबैक।
ज्यादा क्लियर हुआ ग्रेडिंग कैसे करनी है, क्वेश्चन कॉपीज कैसे चेक करनी है बच्चों को और कैसे रिटर्न करनी है? प्लीज रिस्पॉन्ड टू मी। देखिए जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं पता लगेगा कि मैं समझा भी पा रहा हूँ या नहीं। Okay, nice, Babita madam, Pradeep sir, Archana, Madhu madam, Rava madam. Thank you so much for commenting. थोड़ा सा आगे चलते हैं अभी, ठीक है नाउ। अब हमने ग्रेडिंग कर लिया, पीपल कर लिया, क्लास वर्क कर लिया। नाउ इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है, दैट इज व्हाट वी कॉल अटेंडेंस, ठीक है। बच्चे जो है वो अटेंडेंस या फिर लाइक एक टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी एक वो रखना है रिकॉर्ड कि हाउ मेनी स्टूडेंट हैव अटेंडेड द क्लास, ठीक है, बिकॉज कभी भी कोई भी पूछ लेता है। सो हाउ कैन बी टेक अटेंडेंस इन अ सेशन, ठीक है। ये देखते हैं और थोड़ा सा नोट डाउन भी करते जाएंगे इसको साथ साथ प्रोसीजर को। व्हाट वी नीड टू डू इज ओपन न्यू टैब इन द ब्राउजर। यहां पर आपको लिखना है गूगल क्रोम एक्सटेंशन। गूगल क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में जो सबसे पहले आएगा ऑप्शन, दैट इज अ गूगल वेब क्रोम वेब स्टोर, उसको क्लिक करेंगे। आपके पास में ये फॉर्मेट आ गया, ये इंटरफेस आया। इस इंटरफेस की सर्च बार में जाकर के आप यहाँ पे लिखेंगे गूगल मीट अटेंडेंस। यहाँ लिखेंगे गूगल मीट अटेंडेंस। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास गूगल मीट के नाम से 3 वो आएंगे, गूगल मीट, मीट अटेंडेंस, गूगल मीट अटेंडेंस कलेक्टर। हमको सबसे ऊपर वाला करना है गूगल मीट अटेंडेंस। इस पे यहाँ ऐड टू क्रोम ऑप्शन आएगा जब आप पहली बार इसको अपने सिस्टम पे ऐड करेंगे, बट एज आई हैव ऑलरेडी एडेड तो यहाँ पे रेटेड दिखा रहा है। ध्यान रखिएगा ये वाला करेंगे, गूगल मीट अटेंडेंस, नॉट मीट अटेंडेंस, नॉट गूगल मीट अटेंडेंस कलेक्टर, गूगल मीट अटेंडेंस। उसको इंस्टॉल कर देंगे। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे आपके सिस्टम पे यहाँ पे एक ये ग्रीन कलर का अटेंडेंस मार्क नजर आएगा गूगल मीट अटेंडेंस के नाम से, ठीक है। जब आपको ये गूगल मीट अटेंडेंस के नाम से मार्क नजर आने लगे तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम पे गूगल मीट जो है वो इंस्टॉल हो गया है। Now what you need to do is exactly आपको करना क्या है, यहाँ पे एक बार इंस्टॉल होने के बाद में इसको बंद कर देंगे। जब भी आप मीट पे जाएंगे, ठीक है, जब भी आप गूगल मीट पे जाएंगे आप देखेंगे यहाँ पे कितने सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी लॉग्ड इन हैं, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये these are the number of participants that are already in the meet. Rinki Dadwal madam is there in the group. Okay, got it. ये सारे लोग गूगल मीट अटेंडेंस, ये सारे लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जब आप देखेंगे तो आपको गूगल मीट के उस समय जितनी भी लोगों ने अटेंड कर रखा है गूगल मीट आपकी वो क्लास वो यहाँ पे नजर आएगी, ठीक है। दिख रही है आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्लास लिस्ट, कैन यू सी दैट? ओके, आप अटेंडेंस दिख रही है ना आपको, तो आप इस तरीके की मीटिंग जो है इस तरीके की जो रिकॉर्ड है वो आप अपने पास रख सकते हैं। अब इसको सेव कैसे करेंगे,
तो इसको सेव करने के लिए आपको यहाँ पर एक फ्लॉपी कॉलम मिलेगा। इस फ्लॉपी में आपको दिखा हुआ है सेव अटेंडेंस एज CSV फाइल। CSV फाइल इज अ एक्सेल एक्सटेंशन फाइल, ठीक है। आप उसको क्लिक कीजिएगा और आपकी अटेंडेंस जो है वो सेव हो जाएगी, जिसमें ये तक दिखाएगा कि आपके बच्चे जो आपके टीचर हैं वो किस टाइम पे ज्वाइन किए थे और किस टाइम पे, हाँ मतलब किस टाइम पे ज्वाइन किए थे मीटिंग को। तो ये सब चीजें जो है वो रिकॉर्ड में रहेंगी। नाउ दिस इज अ वन वे ऑफ टेकिंग द अटेंडेंस, ठीक है। बट एक और वे है मेरे पास में मींस एक और वे है क्रिएटिंग अ क्वेश्चन। अब आपको याद होगा मैंने ये क्वेश्चन छुड़वा दिया था बीच में, बिकॉज मैं चाह रहा था उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अटेंडेंस लिखेंगे। आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं। अटेंडेंस आज की तारीख है 17/06/2020। शॉर्ट आंसर की जगह मैंने लिखा मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस के बाद मैंने लिखा काइंडली मार्क योर अटेंडेंस एंड ऑप्शन 1 में लिखा प्रेजेंट। एब्सेंट में लिखूंगा नहीं क्योंकि जो एब्सेंट है वो तो आएगा नहीं मार्क करने के, जी मैं तो आज एब्सेंट था इसलिए मैं यहाँ पे अटेंडेंस मार्क करने आ गया, ठीक है। एंड वैल्यू पॉइंट 0 अनग्रेडेड, ठीक है। अब यहाँ पे टॉपिक शिप ऑफ द डेजर्ट पढ़ा रहे हो आप, उसकी क्लास का ले लो, ग्रामर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। ऑल स्टूडेंट, आप भेज ऑल स्टूडेंट को दो। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप ना हर रोज एक ही टाइम पे ना भेजा करें। मान लीजिए आपकी क्लास सुबह 8 से 9:30 के बीच में है, कभी अटेंडेंस भेज दी 8 बजे, किसी दिन भेजी 9:15 बजे, किसी दिन भेजी 9 बजे, किसी दिन भेजी 8:45, ठीक है। और 5 मिनट के अंदर अटेंडेंस मार्क करने को बोला करो बच्चों को, वो अपने आप मार्क कर देंगे। कैसे? ड्यू डेट, नो ड्यू डेट, ड्यू डेट सेट कर देते हैं। आज 18 तारीख है, 17 है ना, मैं 17 तारीख में सेट कर रहा हूँ। 17 तारीख टाइम दिया मैंने, ठीक है। जैसे अब आज की क्लास ले लेते हैं, अभी 4:24 हुआ है ना, तो 4:30 मैंने टाइम दे दिया। अब 17 तारीख को 4:30 बजे तक ये भरनी है और मैं इसको यहाँ पे स्केड्यूल कर देता हूँ 18 नहीं 17 तारीख 04/26। ठीक है, शेड्यूल। अब ये होगा क्या, ठीक 4:26 पे एक मैसेज जाएगा सबको, और जिसकी डेडलाइन कितने बजे होगी, 4:30 पे। 5 मिनट के अंदर जो अटेंडेंस मार्क करके भेजेगा समझ लीजिएगा वो प्रेजेंट है, ठीक है। 5 ही मिनट देने हैं मेरे को। उसमें क्या होगा, बच्चे जो है वो बंक नहीं कर पाएंगे, उनको यही नहीं पता लग पाएगा अटेंडेंस। वो अटेंडेंस मार्क उनकी तभी होगी जब बच्चा फुल टाइम क्लास में बैठेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ टू यूज द क्वेश्चन फॉर्मेट, ठीक है, एंड यूजिंग द क्वेश्चन एज टूल टू टेक द अटेंडेंस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अटेंडेंस वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ? अटेंडेंस वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ? ओके, थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू डॉली मैम, थैंक यू अंजलि मैम, पिताम्बरी मैम, थैंक यू। आगे चलते हैं। अभी हमने यहाँ पे अब ये 3 चीजें रह गई हैं हमारी, मीट, गूगल कैलेंडर एंड क्लास ड्राइव फोल्डर। मैं क्लास ड्राइव फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, मैं जितनी भी क्लासेस बनाई हैं, ठीक है, ड्राइव के ऊपर उस नाम का एक फोल्डर बना होगा और उस फोल्डर के अंदर उस क्लास का सारा कंटेंट मिलेगा आपको। देखिए ये मैंने इस क्लास का फोल्डर बनाया, इस क्लास की ब्लैंक क्विज ये रही, अनटाइटल्ड फॉर्म ये रहा, और जो इमेज मैंने इनकॉर्पोरेट करी वो ये रही, ठीक है। ऐसे ही मैं क्लासरूम पे गया, मैंने 5 क्लासेस 7 क्लासेस बनाई, सबका फोल्डर अलग अलग बना हुआ है और आपको हर फोल्डर के अंदर कोई ना कुछ मटेरियल जो भी मैंने उसमें अगर पोस्ट किया होगा तो वो नजर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ क्लास ड्राइव फोल्डर। आप इस यहाँ से किसी भी क्लास के फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। गूगल मीट मैं थोड़ी देर में बताऊंगा लास्ट में।
बट गूगल कैलेंडर देखते हैं सबसे पहले। गूगल कैलेंडर जो है वो क्या है, गूगल कैलेंडर पे क्लिक किया आपने। जब भी हम मीटिंग लेते हैं, मीटिंग को हम शेड्यूल कर सकते हैं। देखिए मैंने इसमें आज एक अटेंडेंस डाली ना, ठीक है, क्वेश्चन अटेंडेंस डाला ना मैंने एक क्वेश्चन, उसका टाइम लिमिट, यानी हम जो भी काम कर रहे हैं वो डायरेक्टली टाइम बाउंड है और वो इसके साथ में सिंक हो गया। देखिए मैं 20th को देखता हूँ तो भी कुछ ना कुछ असाइन होगा, नहीं दिखा रहा। 19th को है, कुछ असाइन नहीं है। 18th को है, कुछ असाइन नहीं है। ओके ठीक है, कुछ असाइन नहीं है करेंटली, ठीक है। बट हम क्या कर सकते हैं, मुझे पता है मेरे को 19th को एक क्लास लेनी है 11 बजे से, तो मैं 19th को जाकर के 11 बजे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो इसने 1.5 घंटे की क्लास फिक्स कर दी, ठीक है। दिस इज फॉर बेसिकली फॉर स्केड्यूलिंग योर गूगल मीट, ठीक। तो हमने 19th को 11 से 12:30 तक क्लास लिया। इफ यू वांट टू ऐड सम फॉरेन गेस्ट लाइक अदर देन केवीएस डोमेन, ठीक है, तो आप उसको उनका मेल आईडी यहाँ लिख दीजिए, तो वो ऑटोमेटिकली मेल आईडी डाल देगा और उस मेल पे वो लिंक कर देगा कि उस मेल पे लिंक करके बता देगा कि आपको मीटिंग अटेंड करनी है, ठीक है। देन लोकेशन डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। मोर ऑप्शन पे जाएंगे तो बहुत सारे आगे फर्दर ऑप्शन मिलेंगे, जैसे नोटिफिकेशन आपको 10 मिनट पहले चाहिए या और ज्यादा चाहिए। बाय डिफॉल्ट हमने 10 मिनट सेट कर रखा है, 10 मिनट पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। यू वांट टू ऐड अ डिस्क्रिप्शन, वो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए, ठीक है। और इस तरीके से आप इसको सेव कर दीजिए। आपकी मीटिंग जो है वो 11 से 12 बजे डिफाइन हो गई। किसके साथ हुई है? अवधेश के साथ हुई है। यू वांट टू चेंज द क्लासरूम, ठीक है, वेरी इजीली यू कैन चेंज एडिट। यहाँ पे जाकर के मैंने क्लास 4th ईयर सेट किया, ठीक है, सेव कर दिया। अब क्लास 4th ईयर का जो भी गूगल मीट का लिंक है वो सबके पास जाएगा 10:50 पे, और सब लोगों को एक साथ घंटी बजेगी कि क्लास 11 बजे से 12:30 बजे तक। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द कैलेंडर, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द जी सूट्स for controlling or for scheduling the meetings, ठीक है, और for scheduling the class. Now last but not the least, meet क्या है? जैसे मैंने सबसे शुरू में बताया था आपको कि मीट में आप क्लासेस ऑनलाइन लेंगे, जो हम फेस टू फेस मीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम दोबारा यहाँ आ जाते हैं। दिस इज गूगल मीट, ठीक है। लिंक आपको ऑलरेडी आप एज अ टीचर डिफाइन करेंगे। जब आप लिंक डिफाइन कर देंगे तो क्लास ज्वाइन बच्चे करेंगे। बच्चे क्लास ज्वाइन करने के बाद में आपके पास ये वाला इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आपको यहाँ पर देखिए, ऊपर देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा शो एवरीवन एंड चेक, ठीक है। These are the number of participants, those who are attending the meeting. These are the messages. जैसे जैसे आपके साथ कम्युनिकेशन होगा, बच्चों की प्रॉब्लम होंगी, वो प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर बच्चे जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, हेयर यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर प्रेजेंटिंग। एज अ टीचर यू शुड नो हाउ टू प्रेजेंट योर स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पर मैं अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट कर रहा हूँ। दिस इज नॉट योर अटेंडेंस वाला पार्ट के आप आते ही लॉग इन करते ही यहाँ पे प्रेजेंट स्क्रीन दबा देंगे। प्रेजेंट का मतलब है कि आप अपनी स्क्रीन बच्चों के सामने रख रहे हैं, जो आप यहाँ करते हैं। एग्जैक्टली लाइक अगर आप प्रेजेंटेशन चलाना चाहते हैं या कुछ लिंक चलाना चाहते हैं या कोई फाइल बच्चों को दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसको खोलिए। पहले आप यहाँ से अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट कीजिए और वहां से लिंक खोलिए और बच्चों के सामने इन सब चीजों को प्रेजेंट कीजिए, अपनी चीजों को। देन ये ट्रिपल डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको सबसे ऊपर स्टॉप रिकॉर्डिंग दिख रही है। एज आई हैव टोल्ड यू इन द बिगनिंग दैट दिस क्लास इज बीइंग रिकॉर्डेड फॉर द फ्यूचर पर्पस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग दिखा रहा है। बट जब आप इस किसी भी मीटिंग को लॉग करेंगे तो यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग नहीं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग दिखाएगा। आपको स्टार्ट रिकॉर्डिंग करनी है और क्लास खत्म होने के बाद में स्टॉप रिकॉर्डिंग करके रिकॉर्डिंग एंड करनी है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है
डाटा, स्पेस और सब कुछ की बात करेंगे। ज्यादा स्पेस लेगा नहीं, डाटा ज्यादा खत्म करेगा नहीं, स्पेस की आप टेंशन लीजिए मत। एक दिन में 750 जीबी तक का डाटा जो है वो एक टीचर यूज कर सकता है गूगल ड्राइव के ऊपर, तो डोंट यू वरी अबाउट दैट। ठीक है, डाटा आप जब देखेंगे तो डाटा अनलिमिटेड डाटा है केवीएस के पास में, डोंट यू वरी फॉर दैट। ठीक है, सो ये ठीक है, तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है डाटा के लिए। देन आपके पास में 3 कंट्रोल और हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, आपने पिन टू स्क्रीन यूज करके देख लिया है, आप सब लोगों ने मेरी स्क्रीन को पिन किया हुआ है। उसके बगल में आपके पास में एक माइक का कॉलम है, एक नेगेटिव साइन है। ठीक है, हु इज दिस? लाइक अनीता भारद्वाज मैडम। मैडम आप, यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली स्विच ऑन योर माइक। अनीता भारद्वाज मैडम। यस सर। ओके, देखिए अभी अनीता मैडम ने अपना माइक ऑन कर दिया है। अब अनीता मैडम जो है ना वो बहुत थोड़ी नॉटी टाइप है, वो बीच बीच में मुझे परेशान कर रही थी। तो बीइंग अ टीचर व्हाट आई कैन डू इज आई कैन स्विच ऑफ हर माइक फ्रॉम माय एंड। यहाँ पर मेरे पास एक कंट्रोल है म्यूट का, जिससे मैं उनका माइक म्यूट कर सकता हूँ। अब अनीता मैडम नहीं बोल सकते। ठीक है, वो मतलब क्लास के बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप स्टूडेंट को इस तरीके से बीच में रोक सकते हैं। ठीक है, अब बट यहाँ पर एक कंस्ट्रेन है, मैं मैडम को बोलने के लिए मना कर सकता हूँ, बट जब मैं मैडम को बोलूंगा बोलने के लिए तो मैडम को अपने पार्ट से माइक ऑन करके फिर दोबारा बोलना पड़ेगा। मैं मैडम का माइक अनम्यूट नहीं कर सकता यहाँ से। ठीक है मैडम, गॉट माई पॉइंट? अनीता मैम, काइंडली स्विच ऑन योर माइक एंड प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर, आई अंडरस्टूड। ठीक है ना? ओके, नाउ नेक्स्ट वन मोर थिंग इज देयर। आप ये फील कर रहे हैं कि एक बच्चा आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है, देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रिमूव दैट चाइल्ड फ्रॉम द मीटिंग। ठीक है, तो जो साथ वाला माइनस साइन है वो आपको अलाउ परमिट करता है कि आप बच्चे को मीटिंग से हटा दीजिए। सो काइंडली पुट ऑन लाइक प्रेस दैट माइनस बटन एंड द चाइल्ड विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द मीटिंग। So this is what I think is the first part of the training schedule. ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि आपको कोई डाउट है, बिकॉज आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड माय पार्ट नॉन स्टॉप। ठीक है, तो आप लोगों को अगर अपने डाउट्स हैं तो प्लीज मेरे से पूछ लीजिए। एक्सक्यूज मी सर, जैसे एक बच्चे को आपने कहा वो माइनस का साइन से हमने उस बच्चे को बाहर कर दिया, सर क्या वो दोबारा एंट्री ले सकता है फिर? क्योंकि उसके पास हाँ ले सकता है, ले सकता है, ले सकता है। लिंक है तो दोबारा आ जाएगा सर। हाँ कोई बात नहीं, एटलीस्ट उसको ये तो पता लग जाएगा टीचर ने मुझे क्लास के बाहर निकाल दिया है। नहीं सर, एक देखिए मैंने भी क्लास ले रही थी, मैं आज क्लास चल रही थी मेरी, तो एक बच्चा किसी दूसरे बच्चे की आईडी से एंटर कर रहा था और गाने चला रहा था, तो मैंने उसको 2 बार तो निकाला और कुछ बोला भी उसको, उसके बाद वो नहीं आया। लेकिन अगर ऐसे बच्चा बार बार कोई और किसी की आईडी से बच्चा अगर क्लास में एंटर करता है और डिस्टर्ब करता है बार बार। मैं उस समय वो केवीएस की आईडी से लॉगिन कर रहे थे। जी 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 सर, ओके, जो वो बच्चा जो क्लास नहीं अटेंड कर रहा था उसके बच्चे की आईडी से आ रहा था। वो बच्चे ने पासवर्ड चेंज नहीं किया होगा ना, तो ही इज यूजिंग दैट। हाँ, मैंने फिर बच्चों से यही कहा कि आप लोग अपना पासवर्ड चेंज कर दीजिए। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि सबको बताया था वो पासवर्ड पूरी क्लास का शेयर किया था, तो ये देखिए, दीज आर द कंस्ट्रेंट ऑफ लाइक जो हमारे ई कम्युनिकेशंस हैं, इनके कंस्ट्रेंट्स हैं ये। ठीक है, थोड़ा बहुत तो इनको हमें बिहेव करना होता है, बट हाँ ये है कि एटलीस्ट अगर बच्चा थोड़ा सा भी समझदार है उसको ये चीज तो समझ में आ जाएगी कि टीचर ने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया। ओके, तो हाँ ये चीज है। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैम स्मिता मैडम आप अपना क्वेश्चन बोल दीजिए, अभी माइक ओपन करके बोल दीजिए स्मिता मैम। Sir, can I ask a question, please? Yes, madam. This is a question answer session only, madam. सर एक्चुअली आपने स्टार्टिंग में ये बताया था कि जब आपको क्लास कोड रीसेट करना है
तो उसमें अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है उसको ज्वाइन करने में, तो हमें रीसेट करेंगे और बच्चे ज्वाइन करने कर लेंगे उसको। बट जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने पहले पुराना क्लास कोड यूज करके ज्वाइन कर लिया है, तो क्या उनके उनको ऊपर कोई दोबारा ज्वाइन करना उनको होगा? नहीं 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 मैडम, उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ओके। उनके ऊपर कोई Sir, इम्पैक्ट। may I speak? यस ओके, मैम, थैंक प्लीज डेफिनेटली। थैंक यू सर। Sir, I am Smita Srivastava. So when I यस take मैम। class from classroom at classroom, हाँ the link is already there on the classroom portal. हाँ हाँ Sir, but I am not able to see all the children. Like your screen is showing all the children. My हाँ screen हाँ। doesn't show that. How to present all the children on the screen यस so that यस। I can make out who is making noise. देखिए मैम, आप अगर मेरी स्क्रीन पे देखेंगे तो मेरे सबके माइक पे ऊपर रेड कलर का ना माइक क्रॉस लगा हुआ है। इट मींस कि ये सारे लोगों के माइक बंद हैं। एंड आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए 3 डॉट्स बने हुए हैं। इट मींस आपकी माइक बंद नहीं है। यू आर कम्युनिकेटिंग विद मी, फर्स्ट थिंग। ठीक है, तो सेकंड थिंग इज, आप चाहते हैं ये सारे लोग जो है ये कैसे एक साथ आएंगे। तो आप जब इस ट्रिपल डॉट पे जाएंगे, इस ट्रिपल डॉट पे आपको चेंज लेआउट मिलेगा। इस चेंज लेआउट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लेआउट मिलेंगे। ठीक है, स्लाइड बार, स्पॉटलाइट एंड टाइल्ड। मैंने टाइल्ड सेट किया हुआ है इसलिए मुझे ये सारे इस तरीके से नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो इसमें मेन आपको भी करना है वो टाइल्ड ही करना है। कुछ बाय डिफॉल्ट ये वाला सेट होता है। इसमें क्या है कि आपको सिर्फ यहाँ पे ये 4-5 लोग नजर आते हैं, सारे नहीं नजर आते। बट मुझे ना टाइल्ड में, सॉरी, लेआउट में सबसे अच्छा टाइल्ड लगता है। आप टाइल्ड सेट करने के बाद सबको एट अ ग्लांस एक ही स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है स्मिता मैडम, आई थिंक आई हैव रिजॉल्व्ड Okay, sir. योर। Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you. Okay. Any next question? Any other question of this? Thanks for enriching session. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. One more thing, मैंने as I have promised you all, मैं आपको ये दिखाऊंगा। Please share the recording so that we can see later on. Definitely, madam, the recording will be shared with you all along with the attendance to your principal or vice principal, madam. मैं आपको अब ये दिखाने वाला हूँ। Okay, wait a minute now. मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ how to correct the notebooks using phone. I know many of you know how to correct the notebook using phone, but अब मैं अपनी स्क्रीन की प्रेजेंटेशन now I am
तो मुझे आवाज ही नहीं आ रही। It be if I'm not audible, ठीक है, then at least समझ तो रहे हैं ना आप कैसे करना है. समझ में आया कैसे प्रेजेंट करना है? Hello, am I audible? And do you get how to correct the notebooks using phone? Not clear, अंजू मैडम. Okay, yes. देखिए मैंने बहुत सिंपल सा तरीका बताया आपको. आप अपने फोन पे दोबारा जाएंगे, आपके फोन पे जब क्लासरूम मिलेगा, नो, ओके ओके, I'll send you. Okay, Neha madam, if I was not audible, then also आप अच्छा मैं आपको दोबारा प्रोजेक्ट करके दिखा रहा हूँ. आप सुनिए मत, आप सुनिएगा मत, बट आप एक चीज देखिएगा उसमें कैसे कॉपीज करेक्ट हो रही है. ठीक है, आप ये देखिएगा कि कॉपीज कैसे चेक हो रही है. ओके, मैं आपको दोबारा प्रेजेंट कर रहा हूँ. ठीक है, आई एम टर्निंग ऑफ माइक. Now am I audible? Yes. Yes. Okay. देखिए, now I am presenting my screen. What to do is go to classroom app, click on the class जिसका assignment आपको चेक करना है, then click on the class assignment, open the child name जिसका आपको assignment चेक करना है. Edit भी मेरे को ये पेज चेक करना है. ये पेज खोला एंड ऊपर यू कैन सी अ पेंसिल. ठीक है, आपको पेंसिल क्लिक करना है. ठीक है, नाउ एज आई हैव ऑलरेडी, मैंने एक फाइल दोबारा एडिट कर चुका हूँ इसलिए वो नहीं दिखा रहा. वेट अ मिनट. ये देखिए, पेन यूज करने के बाद में नीचे इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको हाइलाइटर चूज करना, हाइलाइटर चूज कर लीजिए. ये पेन है, देन दिस इज अनदर पेन, दिस इज अ हाइलाइटर मोड. ठीक है, यू वांट टू रब द कंटेंट, आपका लिखा हुआ कंटेंट, तो वो भी कर सकते हैं आप. आपके पास में पेन रिसाइज करने का ऑप्शन है, देन कलर चूज करने का ऑप्शन है. आप जो काम MS पेंट पे कर सकते हैं पेन के साथ में, वो सब चीज़ें यहाँ करके आप कॉपी करेक्ट कीजिए, क्लिक एंड देन सेव. दिस इज हाउ यू कैन सेव द नोटबुक. जो भी बच्चों के काम है उसको आप इस तरीके से यहाँ पे सेव कर सकते हैं. ठीक है, नाउ आई एम रिटर्निंग.
Now please tell me. I was clear. I was clear enough. This time पेन के साथ कोई पेन को यूज कैसे करना है? This is clear to all of you. Now got it, sir. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Thank you, Neha, ma'am. Thank you, Manish. Thank you, Asad sir, Anika ma'am, Pradeep sir, Dolly ma'am. Thank you so much to all of you. Suman ma'am, Vice Principal ma'am. Thanks, Avdesh, for such an enriching and a nice session. We will be in Thank touch. you, Suman ma'am. And so nice of you. I Definitely, ma'am. hope everybody has learned a lot from you. And Thank you, ma'am. please send me the attendance after the session. Yes, ma'am. Definitely, I'm going to send you the attendance sheet. So nice of you, No sir. issues. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thanks a lot. हाँ, हाँ, हाँ।